Hello and welcome to this lecture, that is connecting device in a network. Hello, my name is Dheeraj Kumar Gupta and today we start the new lecture, and that lecture name is connecting devices in network. So in this lecture we discuss many type of the networking devices or the connecting devices. So the first of all, we know that what do you mean by the networking devices? So networking devices are component used to connect computers or other electronics device together so that they can share file or resources like printer or fax machines. So in this networking devices means end to end point. When we are connecting a devices, there is in middle there is a many number of networking devices which can perform the function to connect that source to destination. So that the source to destination, with the help of networking device, these all devices are connected, and through that we can share the files or resources or printer or fax machine. So in that, between the source and destination, many number of networking devices we are using. So let's start one by one. What are the networking devices we use for the connecting the source to destination? Different types of connecting devices. In that, we discuss the many networking devices. There are the some networking devices are here. The first one is the LAN card or Ethernet card or NIC, hub, switch, bridge, router, gateway, repeater, and modem. So these are the some different types of the networking devices which is useful for connecting the different networks. So let's start with the first networking device, that is LAN card or Ethernet card or NIC. So this is the layer 1 device, and in this it is a hardware component without which a computer cannot be connected over a network. So this is the hardware component which is the initial that are connected for the system to the network. So whatever the workstation we have, that workstation is directly connected through this device, that is the LAN card or Ethernet card or NIC. It is a circuit board installed in a computer that provide a dedicated network connection to a computer. So there in this that LAN card, in this LAN card there is a dedicated connection, and in that, with the help of that connection, we can connect this computer to the network. It is also called a network interface controller, network adapter, or LAN adapter. So it has the different names. We can call in any names which we have to use here. So जो ये बेसिक है, that is the LAN कार्ड और Ethernet कार्ड और NIC, that is the network interface कार्ड, ये जनरली बेसिकली यूज होता है हमारे एंड स्टेशन से, या जो वर्क स्टेशन है उस वर्क स्टेशन से डायरेक्ट RJ45 कनेक्टर के थ्रू ये लैन कार्ड कनेक्ट होते हैं, और उस लैन कार्ड के थ्रू केबल के थ्रू, दैट इज द ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू हम लोग आजकल कनेक्ट करते हैं इस लैन कार्ड के थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स को. So this is the diagram of the LAN card. This is the external LAN card which has the packet, that is the RJ45 socket. With the help of this RJ45 socket we can connect the cable to the externally, and this is the wireless LAN card. Now the purpose of the LAN card और NIC, we discuss the purpose. क्या purpose हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे.
NIC allows both wired and wireless communication. So with the help of this network interface card हम लोग wired और wireless communication perform कर सकते हैं. NIC allows the communication between computers connected via local area network as well as communication over large scale network through internet protocol. So यही एक मेन जो पोर्ट होता है, जो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग वर्क स्टेशन से बाहर के नेटवर्क के साथ में या लैन से या जो भी लार्ज स्केल नेटवर्क है उसके साथ हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं. NIC is both a physical layer and the data link layer device, that is, it provides the necessary hardware circuit so that physical layer processes and some data link layer processes can run on it. So ये with the help of this net LAN card और NIC जनरली ये दोनों लेयर पे काम करता है, दैट इज द फिजिकल लेयर और द डेटा लिंक लेयर. तो कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू ये काम करता है और जनरली ये रॉ बिट को परफॉर्म करता है, दैट इज द 0 and 1. एवरी NIC कार्ड हैज हार्डवेयर एड्रेस दैट नोन एज द MAC एड्रेस. सो MAC मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोलर. तो हर एक जो लैन कार्ड होता है उसमें एक एड्रेस होता है, दैट इज द मैक एड्रेस, एंड द मैक एड्रेस को ही हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोलर ही कहते हैं. सो ये जो मैक एड्रेस होता है, जनरली ये जो मैक एड्रेस आर लिंक टू द हार्डवेयर ऑफ द नेटवर्क एडाप्टर. जो NIC या जो लैन कार्ड होता है उसके अंदर में एक चिप होती है, उस चिप में ये फिजिकल एड्रेस दैट इज द मैक एड्रेस को लिंक किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर. जब भी मैक का लैन कार्ड का मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें ये मैक दैट इज द फिजिकल एड्रेस को माउंट किया जाता है उस कार्ड के अंदर में. द मैक एड्रेस इज यूनिक टू ऑल अदर लैन कार्ड और इथरनेट कार्ड. जितने भी लैन कार्ड और इथरनेट कार्ड जिनके अंदर में जो मैक एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, वो एड्रेस एक दूसरे के साथ में कभी मैच नहीं होता. तो जब भी हम लोग लैन कार्ड का जो फिजिकल एड्रेस की बात करेंगे तो वो यूनिक होता है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते. द मैक एड्रेस इज 48 बीट हेक्साडेसिमल नंबर. अब जनरली यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जो मैक एड्रेस के अंदर में जो फिजिकल एड्रेस होता है, ये फिजिकल एड्रेस 48 बीट हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो कि 6 स्लॉट में डिवाइडेड होता है. सो 6 स्लॉट में ये 48 बीट नंबर को हम लोग असाइन करते हैं. अब ये यूनिक होता है क्योंकि इसमें ये जो 48 बीट का जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसके फर्स्ट 24 बीट वो असाइन करते हैं IEEE के OUI, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, वो असाइन करते हैं, और रिमेनिंग 24 बीट को असाइन होता है बाय वेंडर्स के. इसलिए ये ऐसे करके ये दोनों मिला के 48 बीट हेक्साडेसिमल नंबर इस लैन कार्ड को असाइन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लैन कार्ड और इथरनेट कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द हब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द हब? हब इज द कनेक्टिंग डिवाइस. इसको जनरली हम लोग कनेक्टिंग डिवाइस कहते हैं. ये जो हब होता है ये इट इज द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस मेनी सिस्टम्स आर कनेक्टेड. तो ये सेंटर में होता है और इससे कई सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. अ हब इज कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन द नेटवर्क. हब्स आर कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट सेगमेंट ऑफ लैन्स. सो लैन के जो सेगमेंट होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम ये हब करता है और सेंट्रली सिचुएटेड होता है. अ हब कंटेन मल्टीपल पोर्ट्स. जनरली इस हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू ये सभी सिस्टम्स को कनेक्ट करता है. व्हेन अ पैकेट अराइव्स एट वन पोर्ट, it is copied to the other port so that all segment of LAN can see all packets. So generally ये हब क्या करता है, हब के पास में जब भी कुछ डेटा आता है तो हब उसको ब्रॉडकास्ट करता है.
सो हब का जनरली काम ये होता है कि उसके पास में जो भी किसी पोर्ट से कोई पोर्ट से जब भी डेटा इस हब के पास में आता है, वो हब उसको सारे जितने भी पोर्ट्स होते हैं उनको वो ब्रॉडकास्ट कर देता है देयर। सो दिस इज द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द हब। और ये हब एक्चुअली इसको हब को हम लोग डंप डिवाइस करके ट्रीट करते हैं। जो ये हब होता है डंप डिवाइस की तरह होता है, क्योंकि ये ऑलवेज ब्रॉडकास्ट दी सिग्नल्स और ब्रॉडकास्ट दी डेटा, जनरली ये ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ हब, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, दैट इज द पैसिव हब एंड एक्टिव हब। सो पैसिव हब जनरली क्या परफॉर्म करता है? पैसिव हब का काम ये होता है कि जो भी डेटा उसको किसी पोर्ट के थ्रू आता है, वो डेटा को वो सारे पोर्ट में सेपरेट आउट कर, सारे पोर्ट को सेंड कर देता है। सो इसमें हम लोग देखते हैं अ पैसिव हब इज जस्ट अ कनेक्टर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टाइप का ये कनेक्टर होता है। इट कनेक्ट्स द वायर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। जितने भी कनेक्टेड वायर, जितने भी डिवाइसेस उसके साथ में कनेक्टेड होते हैं, उनको कनेक्शन प्रोवाइड करता है। द सिंगल पास थ्रू अ पैसिव हब विदाउट रीजनरेशन और एम्पलीफिकेशन। जो भी डेटा उसके पास में आता है वो डायरेक्ट उसको बाकी सारे पोर्ट को वो फॉरवर्ड कर देता है। कनेक्ट सेवरल नेटवर्किंग केबल टुगेदर। जितने भी केबल्स होते हैं उसके साथ में, वो सभी के साथ में वो कनेक्टेड होता है। नाउ द सेकंड टाइप इज द एक्टिव हब और मल्टी पोर्ट रिपीटर। इसी को हम लोग एक्टिव हब और मल्टी पोर्ट रिपीटर कहते हैं। तो इसके पास में जनरली जो भी डेटा आता है उसको वो रीजनरेट और एम्पलीफाई करके उस सिग्नल्स को वहां पे ट्रांसमिट करता है। जब भी डेटा उसके पास में आएगा उसको एम्पलीफाई करेगा और रीजनरेट करेगा और बाकी सभी पोर्ट्स को वो सेंड कर देगा। सो हियर वी सी दैट दिस इज द डायग्राम ऑफ हब, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस, और इस डिवाइस के थ्रू सारे सिस्टम्स इसके साथ में कनेक्टेड है। So this is the diagram of the hub. Now we discuss the switch. So it is also a central connecting device, but switch is the smart device. Generally हम लोग switch को smart device की तरह treat करते हैं। अब ये switch generally है a network switch, इसी को हम लोग बोलते हैं, is also called a switching hub or bridging hub, officially MAC bridge. सो इसके इतने सारे नाम है, आप किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। दैट इज द स्विचिंग हब और ब्रिजिंग हब और मैक ब्रिज is a computer networking device that connect devices together on a computer network by using packet switching to receive, process and forward data to the destination device. सो जनरली ये भी कैसा एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है। सेंट्रलाइज डिवाइस होने के कारण एक्चुअली इसमें कैसा होता है कि सभी सिस्टम्स, जितने भी वर्क स्टेशन है, सब इस डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो है ये जनरली पैकेट स्विचिंग के बेस पे काम करता है, जिससे कि रिसीव करता है डेटा को, प्रोसेस करता है और फॉरवर्ड करता है डेस्टिनेशन डिवाइस तक। उसके बाद में स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस। अब जनरली स्विच को हम लोग लेयर 2 डिवाइस और डेटा लिंक लेयर डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इस स्विच में हम लोग डील करते हैं मैक एड्रेस के साथ में। सो द स्विच क्रिएट कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, दैट इज द कैम टेबल। स्विच क्रिएट करता है कैम टेबल एंड इस कैम टेबल में एंट्री करता है पोर्ट नंबर और उनके मैक एड्रेस की। सो यहाँ पे जनरली होता कैसा है कि स्विच परफॉर्म दी first time switch perform broadcast and the next time it perform the unicast, while the hub always perform the broadcast. तो स्विच क्या करता है कि जब भी आप स्विच से डेटा को सेंड करते हो तो वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेंगे, और जैसे ही उसे किसी भी पोर्ट का मैक एड्रेस पता चल जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब उसको डेटा ट्रांसफर करना होता है तो वो यूनिकास्ट के थ्रू डेटा को परफॉर्म करता है। मतलब यूनि सिंगल पाथ से वो डेटा को फॉलो करता है और इसकी सभी एंट्री इस कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसको हम लोग कैम टेबल बोलते हैं, इसमें स्टोर करके रखता है। टू टाइप्स ऑफ स्विच, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विच जनरली हम वी आर यूजिंग। फर्स्ट वन इज
unmanaged switch, and second one is the managed switch. अनमैनेज स्विच इज जस्ट प्लग एंड प्ले, हम लोग जनरली उसको प्लग करते हैं और वो जो भी उसकी फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है, सिंपली वो सिर्फ कनेक्ट करने का काम करता है। सेकंड टाइप की जो स्विच होते हैं दैट इज द मैनेजेबल स्विच, जिन्हें हम मैनेज कर सकते हैं, कुछ पोर्ट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं जिसमें कि हम लोग वर्चुअल लैनिंग की भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप के दो टाइप के स्विच अवेलेबल है। नाउ we discuss the diagram of the switch. So it is also, ये एक जो आपको दिख रहा है स्विच की डायग्राम है, इस तरीके का स्विच होता है। जनरली इट इज अवेलेबल इन 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट और 64 पोर्ट। तो ये एक आपको 64 पोर्ट का स्विच दिख रहा है जिसमें RJ45 कनेक्टर के सॉकेट दिए हुए, जिसमें हम लोग RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो सेंट्रलाइज डिवाइस, जो भी डिवाइसेस है सब इससे आके कनेक्टेड होते हैं और ये स्टार टोपोलॉजी की तरह यूज होता है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस और कनेक्टिंग डिवाइस दैट इज द ब्रिज। सो first of all, what do you mean by this bridge? So bridge means it is the device, this device is connected different segments, जो भी different LAN होते हैं वो LAN को कनेक्ट करने का काम ये ब्रिज करता है। A bridge operate at data link layer, generally it is the layer 2 device, इसलिए ये जनरली ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर पे। A bridge is a repeater which add on the functionality of filtering content by reading the MAC addresses of source and destination. So generally bridge होता क्या है, अगर मैं ब्रिज की बात करता हूँ तो ये ब्रिज मतलब एक प्रकार का कनेक्टिंग डिवाइस है जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एक तरफ का नेटवर्क है और दूसरे तरफ का नेटवर्क है, तो ये दो तरफ के नेटवर्क को कनेक्ट करता है और ये जब भी डेटा फॉरवर्ड करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो उसे फिल्टर करके उसके मैक एड्रेस को रीड करता है और उसके बाद वो जनरली पैकेट या जो भी डेटा है उसको फॉरवर्ड करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। A network bridge is a computer networking device that create a single aggregate network from multiple communication network or network segment. This function is called a network bridging. So यहाँ पे जनरली ये होता है कि ये जो नेटवर्क ब्रिज होता है ये क्या करता है, ये छोटे छोटे जो नेटवर्क्स है उनको कनेक्ट करता है, एग्रीगेट करता है और कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है उनके बीच में। और जब भी हम लोग इस तरीके के कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं तो इस फंक्शन को हम लोग नेटवर्क ब्रिजिंग के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द ब्रिज, जनरली ये है ब्रिज का सिंबल। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दिस इज द वन सेगमेंट, दिस इज द सेकंड सेगमेंट एंड दिस इज द थर्ड सेगमेंट। तो ये सभी सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम ये ब्रिज करता है। ब्रिज के थ्रू हम लोग ये सभी सेगमेंट को कनेक्ट किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेटा बेस सर्वर दिख रहा है, उसके बाद में कॉर्पोरेट लैंड सेगमेंट दिख रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट दिख रहा है। ये सभी सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम ये ब्रिज, ये नेटवर्किंग डिवाइस करता है। नेक्स्ट वन इज द राउटर। So router, it is very important nowadays, whatever we perform the communication through the internet, so the router helps a lot. So generally router के थ्रू ही हम लोग वो communication, जो भी data transfer, ये सब चीज हम लोग इस राउटर के थ्रू करते हैं। हमने अभी तक जो भी डिवाइसेस देखा सब नेटवर्किंग डिवाइसेस था, बट दिस राउटर इज द इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। सो we discuss this router. A router is a inter-networking device that forwards data packet between computer networks. So generally अब तक के जितने भी devices थे सब networking devices थे, लेकिन ये जो router है ये inter-networking device है, क्योंकि ये जो भी IP addresses होते हैं different IP addresses को connect करने का काम करता है, different segment को connect करने का काम करता है, करके हम लोग इसको इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं।
A router is device like a switch that route data packet based on their IP address. So जनरली ये जो राउटर है, ये राउटर काम करता है आपके आईपी एड्रेस पे। हमने जो अभी तक ब्रिज या जो भी हमने देखा स्विच देखा वो मैक एड्रेस पे काम करते हैं, लेकिन ये जो राउटर है, ये राउटर आपका लेयर 3 डिवाइस है, दैट इज द नेटवर्क लेयर डिवाइस, and it work on the physical as or that is the logical address, that is the IP addresses. Router normally LAN connect LANs and WANs together and have a dynamic update routing table based on which they make decision on routing the data packets. So generally router क्या करता है, ये राउटिंग टेबल क्रिएट करता है और विद द हेल्प ऑफ दैट राउटिंग टेबल ये पर्टिकुलर डिसीजन लेता है कि किस पैकेट को किस रूट से हमको सेंड करना है। साइड बाय साइड ये क्या करता है कि जो भी लैंस और वैन से इनको एक साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि हम जो भी आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को कम्युनिकेट करने का काम ये राउटर करता है। राउटर डिवाइड्स ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑफ होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट। सो जनरली जितने भी ब्रॉडकास्ट जो डोमेन है वो सभी को ये कनेक्ट करने का काम करता है। राउटर क्रिएट राउटिंग टेबल, जो भी राउटर है वो अपने इस राउटिंग टेबल के बेस पे ही राउट परफॉर्म करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस नेम इंडिकेट दैट इज द राउटर। राउटर मींस राउट, ये प्रोवाइड द राउट, राउटिंग प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको राउटर कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ राउटर। सो जनरली क्या हो रहा है, दिस इज द वन सेगमेंट, ये एक लैन का एक सेगमेंट है, स्विच के थ्रू एक लैन कनेक्टेड है और इस साइड में स्विच के थ्रू एक लैन कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल दिस in this section we have the IP address of class A and in this section IP address of class C. So ये A और C एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, so with the help of this router we can communicate this. So A is communicate with the C. सो राउटर पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन के लिए और डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द राउटर। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस और कनेक्टिंग डिवाइस इज द गेटवे। सो generally what do you mean by this gateway? Gateway means it is the device which can connect the internal network to the external network and the external network to the internal network. So a gateway, as the name suggests, it is passage to connect two networks together that may work upon different networking models. So generally ये एक पैसेज होता है कि जिसके थ्रू ये जो दो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करता है और जो डिफरेंट नेटवर्क मॉडल पे जो काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने का काम ये गेटवे करता है। अ नेटवर्क गेटवे कैन बी implemented completely in software or completely in hardware or as a combination of both. So generally ये जो नेटवर्क गेटवे होता है ये कॉम्बिनेशन होता कंप्लीट होता है थ्रू दी सॉफ्टवेयर के थ्रू या हार्डवेयर के थ्रू, या हम लोग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग ये गेटवे तैयार करते हैं। दे बेसिकली वर्क एज द मैसेंजर एजेंट that take data from one system, interpret it and transfer it to the another system. So generally ये complete जो परफॉर्म करता है, complete फंक्शन जो परफॉर्म करता है, ये एक मैसेंजर एजेंट की तरह होता है जो कि डेटा को एक जगह से पिक करता है, उस इंटरप्रेट करता है एंड ट्रांसफर करता है अनदर सिस्टम को। गेटवे आर आल्सो कॉल्ड protocol converters and can operate at any network layer. So generally gateway जो है हम लोग जो भी गेटवे यूज करते हैं तो उसको तो फिलहाल एप्लीकेशन लेयर पे ही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन आप चाहो तो ये गेटवे के थ्रू हम लोग किसी भी लेयर पे किसी भी नेटवर्क लेयर पे हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं।
gateway are generally more complex than switch and router. सो जो स्विच एंड राउटर होते हैं वो सिंपल होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं। स्विच वर्क करता है हमारा मैक एड्रेस पे और राउटर हमारा आईपी एड्रेस पे काम करता है। यहाँ पे जो गेटवे होता है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि जनरली गेटवे आपका जो इनकमिंग कनेक्शन है, जहाँ से आपका डेटा एंटर हो रहा है आपके नेटवर्क में, और वहाँ से ही आपका नेटवर्क आउट होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म होती है कि किस तरह से कौन से एप्लीकेशन वाला गेटवे है या कौन सा सॉफ्टवेयर वाला है गेटवे है, जिसके थ्रू हम लोग वो डेटा को वहाँ से इन और आउट परफॉर्म करते हैं। This is the diagram of the gateway. This is our internal network, and with the help of this gateway we can connect outside the network or inside the network. So this gateway play an important role to transmit the data internal network to the external network. Next one is the repeater. So repeater is just the regenerator, that is regenerate the data and forward to the particular system. A repeater operates at the physical layer. We all know कि जो ये repeater होता है, this is the layer 1 device and it work on the physical layer. Its job is to regenerate the signal over the same network before the signal become too weak or corrupted, so as to extend the length to which the signal can be transmitted over the same network. So जनरली होता क्या है कि जब भी हम लोग कुछ सिग्नल्स या कुछ डेटा वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट सेंड करते हैं, तो जब सिग्नल ट्रैवल होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो कुछ दूर जाने के बाद वो सिग्नल वीक हो जाता है, तो उसे हमको रीजनरेट करना होता है और रीजनरेट करके वो सिग्नल को और आगे तक पहुंचाना होता है। So it can help through this repeater. So with the help of this repeater we can regenerate that signal and forward to the next destination. जहाँ भी उसको हमको सेंड करना है वहां तक हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो रिपीटर जनरली रीजनरेटर होता है। An important point is to note about repeater is that they do not amplify the signal. So this is the concept कि जो रिपीटर होता है ये रिपीटर एम्पलीफाई नहीं करता है सिग्नल को, उसको सिर्फ रीजनरेट करता है, उसके जो वीक सिग्नल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता है। व्हेन द सिग्नल बिकम वीक they copy the signal beat by beat and regenerate it at the original strength. So इसको जब भी सिग्नल वीक होते हैं तो उसको बीट बाय बीट कॉपी करके उसको रीजनरेट करता है। इट इज अ टू पोर्ट डिवाइस। जनरली इसके पास में दो पोर्ट होते हैं, एक जो कनेक्ट होता है एक साइड से और जो दूसरा आपको आउट फंक्शन परफॉर्म करता है, एक इन और दूसरा आउट परफॉर्म करता है। सो रिपीटर में जनरली दो पोर्ट होते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द रिपीटर। जनरली रिपीटर ये दो सेगमेंट है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो ये एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को यहाँ पे इसने कनेक्ट किया है, और जो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफर होंगे सिग्नल वीक होंगे तो उसको रीजनरेट करेगा और आगे ट्रांसमिट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिपीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मॉडेम। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडेम? मॉडेम कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल to combine or to convert the analog signal or digital signal. So the modem is a device that enables a computer to send or receive data over telephone or cable line. So ये मॉडेम जनरली क्या करता है कि वो क्या है, डिवाइस है जो इनेबल करता है, सेंड और रिसीव करता है डेटा through telephone line or cable line के through. The data stored on the computer is digital, whereas a telephone line or cable wire can transmit it only analog signal. So as you know that the signal has two forms. First one is the analog and second one is the digital. So this is the
डायग्राम ऑफ डिजिटल डेटा वेवफॉर्म। डिजिटल में जनरली हम लोग पीक 0 और 1 से इंडिकेट करते हैं, तो ये हम लोग डिजिटल डेटा का वेवफॉर्म है। एंड जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको हम लोग साइन वेव से इंडिकेट करते हैं। The main function of the modem is to convert digital signal into analog and vice versa. So modem generally दो function perform करता है। First, that analog signal को digital signal में convert करता है, digital signal को analog signal में convert करता है। Modem is the combination of two devices, that is the modulator and demodulator. So the modulator का क्या function है? The modulator convert digital data into analog data when the data is being sent by the computer. So generally जब भी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना होता है तो कंप्यूटर जो डेटा सेंड करता है वो डिजिटल फॉर्मेट में रहता है, और वो डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। Now the next one is the demodulator convert analog signal to digital data when it is being received by the computer. So generally जैसी टेलीफोन लाइन और केबल लाइन से जो भी डेटा आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, तो वो एनालॉग को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम ये मॉडेम करता है, और उस प्रोसेस को हम लोग डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो जो भी डेटा डिजिटल से एनालॉग डेटा से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होता है उसको भी वो मॉडेम ही परफॉर्म करता है, और उस प्रोसेस को वो डीमॉड्यूलेटर कहता है। So generally modem is the combination of modulator and demodulator. So this is all about the devices, and that device is the modem, and this is the diagram of the modem. So here one modem is here. So this is the computer. When the computer send the digital data, it convert that digital data into the एनालॉग डेटा। सो एनालॉग डेटा यहाँ पे कन्वर्ट होता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीफोन लाइन और इंटरनेट ये डेटा एक फ्रॉम सोर्स से ये डेस्टिनेशन को ट्रैवल होता है, और जब भी ये टेलीफोन लाइन से डेटा इस सिस्टम के पास जाता है तो यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल होते हैं तो अगेन ये मॉडेम इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में, एंड उस सिस्टम को प्रोवाइड करता है, क्योंकि सिस्टम ओनली नोज दी डिजिटल डेटा, सिर्फ सिस्टम को डिजिटल डेटा ही समझ में आता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मॉडेम। सो मॉडेम कैन परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द connecting device, network connecting device. I hope so you all understand what is the network connecting device, कितने टाइप के नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, सब डिवाइस के क्या क्या फंक्शंस है वो आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर ऑफ योर कमेंट्स। सो आई होप सो you understand this. Okay, bye bye.